ولی اللہ علی اسد اللہ علی 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 ولی اللہ۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام تو اس ذکر کو گھنٹوں گھنٹوں راتوں میں فرماتے تھے، مگر اس وقت کی مناسبت ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ ہی لمحات اب آپ انشاءاللہ ہمیشہ اس ذکر کو کرتے رہیے گا۔ اس ذکر کے صدقے آپ کے قلب نورانی ہو جائیں گے۔ مولا مشکل کشا کا نام ایسا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو علی کے نام سے ابتدا کرے وہ کسی مسئلے میں فیل نہ ہو سکے گا، اتنا کامیاب ہو جائے گا وہ مولا علی کے نام کے صدقے۔ بس ایک واقعہ آپ کی معرفت میں اضافہ کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین مولا امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، آپ کے پاس لوگ آ کر سوال پوچھتے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے بھی سوچتے نہیں ہیں اور آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ ذرا کچھ لمحے کے لیے یا علی آپ غور و فکر کر لیا کریے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ غور و فکر کرا کریے کہ کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ مولا مشکل کشا نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے چاہنے والے، ذرا یہ بتا تیرے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس شخص نے بے ساختہ کہا یا علی 5۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس شخص نے فرمایا کہ یا علی یہ تو ہمیشہ میرے سامنے ہوتی ہے، اس میں کیا غور و فکر کرنا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح سے پوری کائنات میرے سامنے ہے۔ اسی لیے دوران ذکر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پورے یقین کے ساتھ کہیے وہ بارگاہ اجر دینے میں بے نیاز ہے۔ جب بھی کوفے میں کوئی پریشانی کی حالت میں ہوتا تھا وہ مولا مشکل کشا کے دروازے پر پہنچ جاتا تھا اور مولا مشکل کشائی فرماتے تھے۔ اس در سے جڑے رہنا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس وہ شخص آ کر کہنے لگا کہ اے نواسہ رسول، مجھے ایک تجارتی کام کرنا ہے، تجارتی بزنس کا کام کرنا ہے، آپ مجھے استخارہ کر کے بتا دیجئے نواسہ رسول کہ کیا یہ کام میرے حق میں بہتر ہوگا، اس میں میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ نواسہ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کو تم نہ کرو، اس میں تمہارا نقصان ہے۔ بہرحال امام علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس بندہ خدا نے اس کام کو کیا، اور کچھ مہینوں کے بعد وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور تشریف لا کر کہنے لگا کہ اے نواسہ رسول، آپ نے تو مجھے اس کام سے منع کیا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے اس کام کو کیا اور میرا بہت فائدہ ہوا مال کے لحاظ سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تم نے کس چیز کو فائدہ اور نقصان سمجھ لیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے ہمارے پاس ہماری صحبت میں روز آیا کرتے تھے اور اب تم 3 مہینوں کے بعد آئے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں رحمت میں وہ ہوتا ہے جو ہم سے قریب ہوتا ہے، جو ہم سے دور ہو جائے وہ تو رحمت خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے سرکار رسول اللہ نے اہل بیت علیہ السلام نے آپ کو اہل بیت کی محبت عطا کی ہے تو بس اب روز تزکیہ نفس میں لگ جائیے اور اپنے نفس کو نکھاریے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ آپ سرکار اور اہل بیت کے وسیلے سے مانگیں گے تو وہ آپ کے نفس کو امارہ سے مطمئنہ، ملہمہ، لوامہ اور بڑے لوگوں کی نگاہ محترم ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامل ذات بنا دیں گے، کیونکہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اگر آپ مولا مشکل کشا کے وسیلے سے مانگیں گے تو بے شک وہ آپ کی جھولیوں کو پورا بھر دیں گے۔ اس یقین سے مانگیں اور روز اپنے کردار کو سنوارتے رہیے۔ ایک مرتبہ سب درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ والد صاحب بنکوت حضور مقبول مسلم آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے بعد آپ صحابہ کرام سے رجوع کرتے رہیے، لیکن یہ تھا یہ اہل بیت کا صحابہ ایک مختصر مدت تک رہیں گے، اس کے بعد ان کا وصال ہو جائے گا، لیکن اہل بیت تا قیامت ہے
अहले बैत का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, क़यामत तक फैज मिलता रहेगा। और वो उनकी तरबियत, उनका हुक्म, अगर आप वाकई सही माने में उनकी ताज़ीम करेंगे तो अल्लाह की रहमत। अगर ये आपके ऊपर, इसीलिए कुरान और अहले बैत दोनों आपके सामने मौजूद हैं। दोनों को अगर आप मजबूती से पकड़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब जिंदगी और इससे बच जाएंगे। वला से इंसान अगर आप इस पर सही अमल करेंगे तो अल्लाह की तमाम नेमतें आप पर हो जाएंगी, बशर्ते कि आप अहले बैत का की ताज़ीम करें। हज़रत अली की शान में मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने बताया कि मैंने 200-300 सफ़ात जो है 200-250 सफ़ात हज़रत अली की शान में लिख चुका हूँ। अब गुंजाइश नहीं रह गई कि मैं अब ज़मानी सारी चीज़ें याद नहीं और वक्त भी नहीं है, लेकिन औलिया अल्लाह के बारे में मैंने कहा कि अल्लाह वाले जो होते हैं वो उनको खुशखबरी सुना दी गई। क्या खुशखबरी? लहुमुल बुशरा, बुशरा माने खुशखबरी, दुनिया में भी है और आखिरत। क्यों? वो उनका अमल, उनका एक हर यकीन, उनकी काविशें, यानी उनकी इबादत अल्लाह ने इतनी पसंद कर ली कि वो अल्लाह के करीब हो। मैं जानता हूँ ये कांटे का बिस्तर है, हम लोग तमाम पढ़ते ही रहते हैं, तहज्जुद गुजरा, इशराक गुजरा, तमाम चीज़ें, लेकिन बस हम लोग समझते कुछ नहीं जानते। तो और ये भी कोशिश करते हैं कि अपनी ज़ुबान से ऐसे कलमात न निकलें जो हमारे औलिया किराम ने बयान किए हैं, वो भी रखते हैं। इज्जत भी लोगों की करते हैं, झूठ भी नहीं बोलते, मक्र भी नहीं करते, फरेब भी नहीं करते, उसके बाद भी वो ज़बानों में तासीर नहीं आ रही है। मेरा कहने का मतलब ये मंजिल बड़ी कठिन होती है। जो लोग इससे गुजर गए वो अल्लाह वाले हो। और इस वक्त तमीज करना जुएशीर लाने के मतलब है। इस दौर में इस वक्त जो है एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। कभी कभी सोचने पर मेरे यहाँ रोजाना 100-200 आदमी आते हैं दिखाने के लिए मरीज, जबकि मैं कुछ नहीं, मैं अपने कुछ नहीं समझता। तो ये है, उसके बावजूद भी ये भी अल्लाह की रहमत है, बुजुर्गों का फैजान है, लोग आते रहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन निस्बत जुड़ी हुई है। मेरे पास न तो इल्म है, न अमल है, न शरीयत है, न तरीकत है, न हकीकत है, न मार्फत है, लेकिन बुजुर्गों की निस्बत है। और जहाँ भी ऐसा होता है अल्लाह की रहमत, उनका करम, बुजुर्गों का फैज़ान। हज़रत अली तो के बारे में कुछ कहना, मैंने बताया जुएशीर लाने के मतलब है। हम जैसे कम इल्म के लिए इतना मौका नहीं कि उसकी शान में कुछ बयान हो। अभी मैंने सुना, बड़ी खुशी हुई, और मुझे वो सब लेकर आ जाओ, ठीक है, जाया करते हैं। अभी एक वाक़या मुझे याद है कि वहाँ पर गोवा में मेरा प्रोग्राम जी, और वो प्रोग्राम रखा गया कि मखदूम अशरफ की शान में कॉन्फ्रेंस मखदूम अशरफ। जब हम लोग वहाँ करीब पहुँचे तो वहाँ पर ये हुआ कि कॉन्फ्रेंस बदल दी गई, उसका नाम ही बदल दिया गया। तो मेरा कहने मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें वाकई जो है अहले बैत की मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह, मेरे आका की मोहब्बत होगी। जब मेरे आका की मोहब्बत होगी तो अल्लाह का करम। ये अजीज बाबू के बारे में, जिनको हम लोग बाबू कहते हैं, उनके बारे में शुरू से मैंने देखा, आप भी और देखते थे, और इनके बहुत सी बातें बताया करते थे। उनका क्या तकवा है, उनका क्या मुकाम है। मैं भी जब से मेरी मुलाकात होती, ज़्यादा उनकी जुबान चलती ही रहती, जबकि हम लोग उनसे अच्छी तरह वाकिफ थे, बेतकल्लुफ़ भी थे, उनके पास बैठते थे, हंसते भी थे। लेकिन मैंने देखा कि उनके अदब में कोई जो है, उसी लिए कहा गया तसव्वुफ़ मुकम्मल अदब बना। और मैंने जब वो 29 मुहर्रम को जाते थे हमारे यहाँ कव्वाली में मखदूम समलानी की, तो मैंने उनको हमेशा ऐसे ही देखा, नजरें नीची, हाथ बंधा हुआ, कितनी देर बैठे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा,
मैंने उनकी नजर को इधर उधर देखते हुए नहीं देखा। मैं भी बैठा रहता था, वो भी बैठे रहते थे। मालूम हुआ कि बुजुर्गों की वो शान, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपने को सब कुछ वक्फ कर दिया अल्लाह के लिए। तो वो शख्स जो अल्लाह की रजा के लिए तालिबुल दुनिया मरदूदुन, दुनिया की तलब के लिए नहीं आखिरत की तलब के लिए जिसने अपने को वक्फ कर दिया, अल्लाह ने मुकाम अता कर दिया। तो अल्लाह वाले के हाथ जो हैं इस तरह नहीं फैलते, बल्कि उनके हाथ झुके। अगर कोई तकलीफ भी देता है तो वो कहते तो कभी अगर ऐसी बात बाबू जाए दो, हम अपनी जुबान में बताएं बाबू जाए दो, ऐसी कुछ भी हो तो मालूम ये हुआ अल्लाह वाले दरगुजर भी करते हैं। अगर आपने उनको गाली भी दिया तो यही कहेंगे अल्लाह भला करे। मालूम ये हुआ अल्लाह वालों की शान में अगर कुछ बयान किया जाए तो मेरा ख्याल कई घंटा गुजर जाएगा। लेकिन अगर आपने वाकई अहले बैत के दामन को पकड़ लिया, अल्लाह वालों को पकड़ लिया, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मंजिलें आसान होंगी। तो ये अजीज बाबू के मौके मैंने बताया ये कि आज से नहीं बहुत दिन से हमारे ताल्लुकात थे और हमेशा रिश्ता बना रहा। और जब से आपने पर्दा पर मैं गालिबन शायद कभी नहीं जब तक रहा आता हूँ और आता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इनका फैज़ान महदूद नहीं है, ये कोई हमारे ही लिए नहीं था बल्कि ये तमाम लोग जो आए हुए हैं सब पर इनका फैज़ान है। इस तरह से सूरज की किरणें सिर्फ एक तबके के लिए महदूद नहीं होती। जब सूरज निकलता है तो गरीब पर की झोपड़ियों पर जाता है, तंगदस्तों पर भी जाता है, महलों पर भी जाता है। मालूम ये हुआ जिस तरह सूरज की किरणें जो महदूद नहीं होती उनकी चमक हर जगह पहुंचती है, उस तरह अल्लाह वालों की भी शान हर जगह। तो ये अल्लाह वालों की शान है कि आप यहाँ आए हुए हैं, कौन जाता है किसके पास। बड़े बड़े लोग गुजरे कहीं कोई नहीं जाते, लेकिन जब बुजुर्गों के मज़ार पर जाइए तो वहाँ एक मेला सा लगा रहता है। मखदूम समनानी के मज़ार पर एक लाखों आदमी है, ऐसा लगता है जैसे जो है कीड़े मकोड़े की तरह आदमी रहते हैं। लेकिन ये भी शान अल्लाह वालों और इनकी वो मोहब्बत। मैंने बताया जब तक ये सेहतमंद थे मैंने कभी उनकी 29 को कदा होते नहीं, यानी शिरकत को मुलतवी नहीं देखा। लेकिन एक बार जब आखिरी वक्त हुआ तो मैंने देखा, उस बार मेरा ख्याल 10 मिनट बैठे। मैंने कहा बैठिए कहना है बाबू अब देख, उसको बाबू ही कहते थे, ये बाबू ही मुझको कहते, इसलिए मैंने कहा बैठिए बैठिए। कहा नहीं अब मेरे पास बाद में बाबू बात करूँगा। खैर मालूम ये हुआ ये अल्लाह वालों की शान है और ये आज बाबू की जगह पर हम लोग आए हुए हैं और इन्हीं की मोहब्बत और निस्बत है कि हम लोग दूर दराज से चले आते हैं। मैं तो हिंदुस्तान नहीं बैरून मुल्क का भी दौरा करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। हिंदुस्तान ही नहीं बहुत दूर दूर तक जाता हूँ और लाखों आदमी मेरे हाथों को बैठे, एक दो की बात नहीं लाखों की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास कुछ नहीं है, बस इन्हीं बुजुर्गों का फैज़ान है, इन्हीं की निस्बत। तो जब बुजुर्गों से आप जुड़ेंगे तो आपको हिदायत मिलेगी, आपको सुकून कल्ब मिलेगा, आपको शरीयत मिलेगी, आपको तरीक़त मिलेगी, आपको मार्फत मिलेगी। तो बुजुर्गों ने अगर दुआ कर दी तो इनकी रकीबाब आप जानते ही होंगे, ये इनकी शान है बुजुर्गों की, जिसके अगर आपकी भी बारे में मैं बयान करना शुरू करूँ तो रात हो जाएगी, वक्त की किल्लत है। लेकिन अल्लाह वाले ये खुशखबरी जो अल्लाह ने सुनाया है, इन्हें दुनिया में भी खुशखबरी है और आखिरत की भी खुशखबरी है। दुनिया में भी जिंदा है, आखिरत में भी जिंदा रहेंगे। तो इसलिए आप इनकी पैरवी करेंगे, इनके वसूल पर चलेंगे, इनकी बताई हुई बातों पर यकीन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। और उसके बाद उनके जानशीन पर आप इत्मीनान करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे, उनके बताए हुए वसूल पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मंजिल आसान होगी। कोई भी शरई मसला हो, आप आलिम दीन भी हैं और सज्जादा नशीन भी, तो दो हिस्सा आपके हाथ में है। इसलिए अगर आप इनसे मिलेंगे तो आप समझिए बाबू से मिले। बाबू से मिलने का मतलब
आप मखदूम साहब से मिले, मखदूम साहब से मिले तो अल्लाह से मिले। मालूम ये हुआ कि मंजिल चलती रहती, हजारों बार नरगिस अपनी बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा, तो बहुत से लोग बहुत मुश्किल से पैदा होते। और ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कुछ कहना नामुमकिन है, कि खुद अल्लाह इनकी जब तारीफ कर रहा है तो हमें तारीफ की जरूरत नहीं। लेकिन बुजुर्गों का बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, जिसने अदब किया बुजुर्गों का, अल्लाह ने उसको रास्ता और हिदायत दिया। तो ये मुकाम है। आज इस मौके पर हमारा वक्त नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मगरिब का वक्त हो जाएगा, फातिहा भी होगा, इसलिए मैंने चंद लफ्ज़ों में बता दिया, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। और ही नहीं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। तो मालूम हुआ कि उन्हें कोई खौफ भी नहीं, बल्कि खुद मालूम हो जाता है, अल्लाह ने फरमा दिया इन्हें कोई खौफ नहीं। बिजली के खंभों पर जिस तरह लिखा रहता है, सावधान होशियार, अगर तुमने उनकी तरफ नापाक हाथ लगाया या लगाने की कोशिश की तो बिजली खत्म कर देगी, बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह अगर आपने औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी की तो आपकी दुनिया भी खराब होगी, आखिरत भी खराब होगी। तो इसलिए बेहतर है सुनिए कुछ, अमल वही कीजिए जो आपके पीर ने बताया या आपने सीखा है या आपके बड़ों ने बताया, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ऐसा माहौल जैसे लगता है नूर बरस रहा है, अजीब सा माहौल। ये माहौल की देन ये हस्तियाँ हैं और ये बयानात जो खुद बयान कर रहे हैं, जो आप बड़े गौर से सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। वाक़ई दामाना अल्हम्दुलिल्लाह।